Captain Saab, good morning. Pawandeep ji, good morning. Smita ma'am, good morning. Good morning, everybody. So just to brief you, I'll just give a brief what are the things that the government is doing. Then my colleague, my namesake, Mr. Amit Kumar, he'll take you through the presentation and the provisions that you can avail. There has been a recent thing that has happened is interministerial group has been formed, and it is very sincerely meeting every day at 10 in the morning every day, and all the stakeholders that support the ecosystem exports are involved there, be it the surface transport, be it the railways, be it the port, be it the regulators, RBI, and the Department of Commerce, DGFT, of course, they are part and parcel of the scheme of things. And of course, ECGC has been involved in this. We are seeing all the issues raised by the exporters are being addressed on daily basis. To tell you the fact, even the issues like the truckers are not getting their diesel right kind of quantity filled in their trucks. Even it has gone deep down to this extent that even these things are being addressed, resolved. Railways are being contacted so that the shipments, the transport is taking place without any hindrance, without any hurdle. Worth mentioning here is the role and responsibilities that the Port and Shipping Ministry have assumed and have given deliverables which are very much in favor of exporters. You might have seen that they have extended the timeline for your free storage. Container Corporation is also working day and night, burning the midnight oil. And I have in the IMG meeting, I have seen DG himself and his directors also, taking the issues of sudden increase of this logistic cost. See, there is a thing, there is an increase, and beyond that increase also the logistic companies are charging. So these things are being addressed, rationalized, and worked upon. Then RBI has also come up with the recent two measures which has helped which is in favor of the exporters, whereby you can extend the due date of your post-shipment bills or pre-shipment credit, and also the very important, which has never happened till now, is that you can liquidate your PC advances if you have not been able to export from legitimate domestic proceeds. So this was never in the guidelines till now, but there is a recent circular issued by RBI wherein they have given lot many relaxations, including the liquidation of packing credit from domestic proceeds. Then again, to mention the mega government's ambition through EPM, Export Promotion Mission, wherein the outlay of 25,000 crores was approved by the cabinet, and it has been institutionalized, made instrumental through various agencies, including ECGC, to support the export ecosystem, so that your export capability remains intact. And a part of that EPM only, this relief intervention scheme has come up, which is mainly for the disturbances caused due to the Middle East crisis. There are various components of it, which is adequately addressing the sudden need, sudden cost escalation in the logistic and insurance of the exporters. It is for the existing ECGC policyholders, as well as for the exporters who will be taking policy covers within a specified period of time, and the MSME exporters who have not taken policy covers at all. So this is covering the entire paraphernalia, the entire ecosystem of exports, which can be benefited. And through you, sir, through your council, I would urge that all the exporters, MSME exporters, or the exporters who have taken the policy covers, should file their claim with ECGC through the online portal as soon as they can. So this will be and we also at our end, we have also geared up to settle all your claims in a
in a very expeditious manner. We have kept the range within 30 days for the ECGC policy holders and the exporters who will be taking policy covers. And for MSME, we have kept the range even smaller. Within 20 days, we want to settle the claims. We have received the funds also from the Government of India for this implementation of this scheme. And that's it. The idea of explaining before you all these things is that the system is vibrant, system is alert, system is listening to you. The more inputs comes from your side, the more vibrant will be the system, and the more and more support will come to you. So all your problems, issues raised through the proper channel, through the council, and this will be brought in the interministerial group that has been formed. So with this message of mine, I will now expect, and I hope that our ecosystem of exports remains resilient, and our share in the value chain, global supply chain increases day by day, despite the hurdles. So that was it from my side. And before I conclude, I just have a thing for you, the office bearers of the Carpet Export Promotion Council. We are organizing yet another outreach program for the opinion makers in the export industry on 10th of April, wherein those from ECGC's side, those who have made this scheme, those who have engineered this scheme, will be available for a discussion. So we'll be sending a formal invite there, and we'll expect your participation and more so your interaction there. So over to you, Amit. Thank you very much. I'll be live in the program, and should there be any query clarification, I'll be very happy to answer it. Thank you very much, sir. Thank you all. Thank you, Amitji. Thank you. Your outreach program for 10th April is duly noted. We'll inform our members as well. And thank you for the session today as well. Good morning, ma'am, and good morning, Pawandeep sir. Good morning, Captain sir. I think RM sir has already explained what is the intention and how the things worked out by the ministry as well as the ECGC. Now we will start with the main thing. I think we will share with the PPT. I believe everybody is aware because it is available in the public domain that what measures the government has come out, and we have also listed in our ECGC website. So to begin with, anybody wants any information, I think the best way to go is just go to the ECGC website. In the home page itself, the link is there, the information is there. So anybody can just go and see it, and most of the queries will be answered. So it's not about the schemes. There are also FAQ. So FAQ is also there in the website. So normally all your queries will be answered by the FAQ, which is listed in the ECGC website. But even after going through all the information, if anybody has any problem, so definitely they can connect with the ECGC person anywhere in the pan India, whatever location is there, any nearby ECGC, they will help you out. So I believe with that, I'm just sharing this. With this, I'm just reiterating what has already explained. I think इसमें जिनको भी I think कभी भी doubt लगे, so then and there they can ask the question. I think that is the best way to deal with. तो जो रिलीज मेजर्स है इसके अंदर जो 3 कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट 1, 2 and 3. तो 1 और 2 किसके लिए एप्लीकेबल है? जो ECGC की पॉलिसी या तो ले चुके हैं पहले से या फिर लेने वाले हैं. Ultimately, this component 1 and 2 is applicable to only those exporter who is either already have the policy or has taken a new policy. So this is all about the component 1 and 2. And component 3 के अंदर क्या है? Component 3 के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि आप ECGC के पॉलिसी होल्डर नहीं है और आपने लिया भी नहीं है, तो भी एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन प्रोविजन है जहां आप अपना कंपनसेशन दे सकते हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम कंपनसेशन जो मिनिस्ट्री दे रही है वो क्या दे रही है.
तो यहाँ बड़ी ना चीजें क्लियर है और ऑब्जेक्टिविटी है इसके अंदर कि जो कवर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि अगर आप वॉर की वजह से you are incurred additional losses or additional amount of the कार्गो ट्रांजिट या फिर ये इंश्योरेंस, तो अगर आपका एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड हुआ है बिकॉज लाइनर ने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है बिकॉज ऑफ द वॉर एंड दे हैव इनकर्ड अ वॉर सरचार्ज, लेट्स सी $500 पर कंटेनर और $1,000 पर कंटेनर आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया गया है आफ्टर मेकिंग द शिपमेंट विथ whatever the excuse or whatever the reality they are facing. तो ये एक तो ये कंपोनेंट है कि जो लाइनर्स हैं वो आपसे एडिशनल चार्ज कर रहे हैं पर कंटेनर वंस द शिपमेंट हैज ऑलरेडी डिस्पैच्ड फ्रॉम द इंडिया, एंड ये ड्यूरिंग जर्नी के वक्त या तो इनवॉइस रेज हो रहा है या फिर अच्छा हम ये जो बात कर रहे हैं ये एप्लीकेबल कहाँ है, ये एप्लीकेबल है वहां पे जहाँ पे आपका CIF टर्म्स ऑफ पेमेंट है, जहाँ एक्सपोर्टर कॉस्ट भी दे रहा है यानी कि जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो भी दे रहा है और इंश्योरेंस भी दे रहा है। तो अगर एक्सपोर्टर ने ही ये बियर किया है इंश्योरेंस कॉस्ट एज वेल एज द ट्रांजिट कॉस्ट, तो देयर इज ए लाइकलीहुड कि जो इंश्योरेंस कंपनी है या जो ट्रांजिट कंपनी है वो आप एक्सपोर्टर से ही एडिशनल चार्ज करेंगे। तो CIF वाले इनको टर्म्स में अगर जो एडिशनल चार्ज हो रहा है इस कंपोनेंट की बात हो रही है, चाहे वो रिलीफ कंपोनेंट 1 हो 2 हो या 3 हो, तो ये जो एडिशनल चार्जेस हैं ये एडिशनल चार्जेस कंपोनेंट 3 के अंदर इफ यू आर नॉट ए पॉलिसी होल्डर you can online you can apply and you will get the 50% of the additional losses जो additional आपने expenses incur किए हैं in terms of the additional insurance cost and the additional transit. तो I believe ये clear है कि किस component की बात हो रही है। तो इसी component पे जो additional expenses हैं वो है। दूसरा ये है कि अगर आपका इनको टर्म्स FOB है तो उस केस में आप कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर FOB का टर्म्स ऑफ पेमेंट है तो उस वक्त एक्चुअली इशू क्या होता है कि आपको तो इंश्योरेंस से भी मतलब नहीं है और ट्रांजिट के कॉस्ट से भी मतलब नहीं है, बट इफ द बायर इज सेइंग यू दैट यस आई विल पे यू बट आफ्टर डिडक्टिंग द एडिशनल कॉस्ट व्हिच बायर हैज इनकर्ड on account of the insurance as well as on account of this additional transit fare. तो अगेन अगर आपका इनको टर्म्स FOB है और आप को बायर जो पेमेंट कर रहा है वो डिडक्शन करके कर रहा है विद द सोल रीजन ऑफ साइटिंग कि भाई बायर को एडिशनल उसे इंश्योरेंस कॉस्ट लेना पड़ गया है या फिर उसमें ट्रांजिट जो कॉस्टिंग है उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है एंड दे आर गिविंग यू द प्रूफ फॉर द सेम। तो अगर हम ये मान के चलें कि $1 लाख आना था बायर की तरफ से, बायर ने आपका $10,000 डिडक्ट कर लिया या $20,000 डिडक्ट कर लिया और वो आप भी रहा है कि ये देखो $20,000 ये एडिशनल इनवॉइस रेज किया था इंश्योरेंस कंपनी ने, तो ये तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है, ये एडिशनल कॉस्ट है एंड दैट वी आर गोइंग टू डिडक्ट। तो वैसे केस में भी जो आपका नेट अमाउंट आया $80,000 और जो 10,000 या $15,000 आपका नहीं आया है solely on account of the additional cost incurred by the buyer on insurance and the transit, ये कंपोनेंट भी आप क्लेम कर सकते हैं इसी से जो अभी रिलीफ मेजर आया है। तो आई थिंक हम ये चीजें बड़ी क्लियर है कि किस टर्म्स ऑफ पेमेंट किस इनको टर्म्स में क्या करना है। CIF में हम क्लियर हो गए कि क्या ये कैसे कंपनसेशन कैलकुलेट होगा, FOB के केस में भी कैलकुलेट हो गया। तीसरी जो चीज है वो ये है कि ये पूरे ये जो रिलीफ मेजर है ना इसका एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपका जो गुड्स है वो या तो जो सिलेक्टेड कंट्रीज जो मेंशन किया गया है उसी को वही डेस्टिनेशन है आपका, या फिर ये अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो आपका शिप इस डेस्टिनेशन के थ्रू जा रहा है यानी कि इन ट्रांजिट है। तो अगर आपका जो गुड्स शिपमेंट है आइदर इट हैज डेस्टिनेशन फॉर दीज कंट्रीज
आई थिंक कंट्रीज सबको पता है, फिर भी मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि यूएई है, सऊदी अरबिया है, इजराइल है, कुवैत है, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान एंड यमन। तो यहाँ पे इन कंट्रीज पे या तो आपका डिलीवरी हो रहा है या फिर ये ट्रांसशिपमेंट है। इन दोनों केस में ही एप्लीकेबल है। अगर आपका कंसाइनमेंट कहीं और जा रहा है जहां पे ये इम्पैक्ट नहीं है, ये कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, न ही डायरेक्ट डेस्टिनेशन के रूप में या फिर ट्रांजिट के रूप में, तो ये जो रिलीफ मेजर्स है सर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग चीजें क्लियर है कि एफओबी के टर्म्स में हमारा क्या लॉस कैलकुलेशन है, सीआईएफ के केस में क्या लॉस कैलकुलेशन है और ये किस कंट्रीज में है। तो ये है एक ओवरऑल पिक्चर कि रिलीफ मेजर्स में हम क्या दे रहे हैं और ये कंपनसेशन क्या है। कंपोनेंट 1 की ओर आते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये कंपोनेंट 1 किसकी बात कर रहा है? जो हमारे ईसीजीसी के पॉलिसी होल्डर ऑलरेडी हैं, जो पहले से ही हैं, तो उनके लिए ये प्रोविजन दिया गया है और खासकर शिपमेंट डेट मेंशन किया गया है कि 14 फरवरी से 15 मार्च, यानी कि अगर आपका बीएल डेट इन दोनों के बीच में था, ठीक है, फ्रॉम 14 फेब टू 15 मार्च, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको जो भी ये एडिशनल एक्सपेंसेज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ दिस एडिशनल कॉस्ट, चाहे वो का टर्म्स हो या सीआईएफ हो, और अगर एफओबी है और आपको बायर से ही कम पैसा आया है, ठीक है, और बायर के पास ने आपको ये बताया है, तो वैसे केस में ईसीजीसी एनीवे विल ना प्रोसेस द क्लेम एज पर द ईसीजीसी गाइडलाइन। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर ईसीजीसी लेसी आपका पॉलिसी था और उसमें कवरेज 80% था, तो अगर आप क्लेम करते भी हैं तो ईसीजीसी आपको 80% ही बाय डिफॉल्ट देगी, बिकॉज द कवरेज इज 80%। नाउ द व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग कि ईसीजीसी इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड यू 100% कंपनसेशन, यानी कि बाय डिफॉल्ट ईसीजीसी के अंदर अगर हम आपका लेसी $10,000 का लॉस था, तो ईसीजीसी के पॉलिसी में विदाउट एनी इंटरवेंशन हम आपको एटलीस्ट $8,000 देते। लेकिन अभी इस इंटरवेंशन की वजह से, रिलीफ मेजर की वजह से, हम आपको पूरा का पूरा देंगे, यानी कि $10,000 की जगह पूरा का पूरा $10,000 देंगे। और ये जो $2,000 है, जो 20% गैप है, ये गवर्नमेंट ईसीजीसी को रिम्बर्स कर देगी। तो ये है कंपोनेंट 1। तो जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, जिनको भी जिनका शिपमेंट इस पीरियड में था, चाहे वो एफओबी हो, सीआईएफ है, अगर उनका कोई भी एडिशनल कॉस्ट इनकर हुआ है फॉर इंश्योरेंस एंड द ट्रांजिट, या बायर से ही कम पेमेंट आया है, तो इमीडिएटली ईसीजीसी के नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस से बात करें, और जो उनका क्लेम का प्रोसेस है, दे हैव टू इनिशिएट द क्लेम प्रोसेस। सब कुछ ऑनलाइन है और नियरेस्ट ईसीजीसी ब्रांच ऑफिस से आप बात कर सकते हैं। तो दे विल गाइड यू ऑल्सो हाउ टू डू इट। तो एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। तो आपको वैसे ही एक्सपोर्टर को फाइल करना है जैसे नॉर्मल आप करते हैं। थिंग इज द कंपनसेशन विल इंक्रीज टू 100%। तो दिस इज द कंपोनेंट 1, जहां आपको 100% कवर मिलेगा, चाहे वो क्या कहते हैं, आपका 80% का कवर हो या आपको 90% का कवर। तो दिस इज द कंफर्ट गवर्नमेंट हैज गिवन अंडर द रिपोर्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट 2। अब कंपोनेंट 2 में क्या कह रही है रिलीफ मेजर्स? सरकार ये कह रही है कि अगर आपने ईसीजीसी पॉलिसी होल्डर नहीं लिया है, कोई बात नहीं, आज भी यू हैव द अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड गो एंड टेक पॉलिसी विद द ईसीजीसी। अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, उसमें भी उन्होंने टाइमलाइन डिफाइन किया हुआ है एज ऑन डेट, कि जो 16 मार्च 2026 से लेके 15 जून 2026 तक का आपका बीएल डेट अगर है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि इवन यू हैव नॉट टेकन टिल नाउ ईसीजीसी पॉलिसी, the government is encouraging and advising exporter to go and take ECGC policy for their export requirement। इसके बदले में एक्सपोर्टर को क्या मिलने वाला है सर? एक्सपोर्टर को ये मिलने वाला है कि अगर आप पॉलिसी ले लेते हैं, चाहे आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं और उसके अंदर चाहे जो भी कवरेज है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप पॉलिसी लेने के बाद अगेन इन टर्म्स पे जो लॉसेज की हमने बात की, ऑन अकाउंट ऑफ दिस एडिशनल transit cost or the additional insurance premium, or the buyer is giving you a lesser payment after deducting this additional cost,
वैसे केस में अगर आपका लॉस होता है एंड यू आर फाइलिंग अ क्लेम विद द ईसीजीसी, ईसीजीसी इज डायरेक्टेड टू पे यू द 95% ऑफ द लॉस। जो पहले से थे उनको रिवार्ड दिया गया कि चलो 100% दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप भी आज भी ले रहे हैं ईसीजीसी से, तो आपका जो एटलीस्ट जो आज के बाद का जो शिपमेंट है उस पे अगर आपका ये लॉसेज होता है, इस लॉस का 95% ईसीजी मतलब गवर्नमेंट आपको दे रही है। पॉलिसी के अंदर देयर इज अ चांस कि हम आपको 80% कवर दें या 90% कवर दें, जो बाय डिफॉल्ट है पॉलिसी के अंदर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो एडिशनल जो कवरेज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो कंपोनेंट 2 के अंदर आई थिंक द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि जो भी एक्सपोर्टर आज की तारीख में ईसीजीसी की पॉलिसी नहीं लिए हैं, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप ये लीजिए, क्योंकि लेने से आपका सबसे बड़ा, क्योंकि नोबडी नोज कि ये जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कितने समय तक चलने वाला है, किसी को ये आइडिया नहीं है। कुछ लोग शायद 1 ईयर भी कम ही बता रहे हैं, क्योंकि इसका रिपरकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आपके पास ये एक आई थिंक बेस्ट वे है कि आप ईसीजीसी पॉलिसी लीजिए, और लेने के बाद, क्योंकि ईसीजीसी पॉलिसी लेने में आपका सबसे जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि जो पॉलिटिकल रिस्क है ऑन अकाउंट ऑफ वार सरचार्ज और एडिशनल डाइवर्जन ऑफ शिपमेंट, ये हम बाय डिफॉल्ट ईसीजीसी पॉलिसी के अंदर कवर देते ही हैं। तो अगर आपने पॉलिसी ले रखी है हमसे तो 80% या 90% आपको एटलीस्ट हम देते हैं। एक चीज जो स्ट्राइक करने की चीज है, आई थिंक सबको ध्यान देना चाहिए कि जो कंपोनेंट 3 है, जहां पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ईसीजीसी पॉलिसी लेना है, वहां पे सरकार ने एक कैप लगाया हुआ है। एक तो क्या है कि आपको जो लॉसेज होंगे वो लॉसेज का 50% ही गवर्नमेंट दे रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि आपको इस अकाउंट के ऊपर ऑन अकाउंट ऑफ दिस एडिशनल ना चार्जेज ऑन इंश्योरेंस कॉस्ट एंड द ट्रांजिट कॉस्ट, आप जो भी इसी ये कंपनसेशन के लिए सबमिट करेंगे, इसके अंदर आपका जो मैक्सिमम कैप है वो है 50%, पहला। और दूसरा ये कि इसके अंदर पर आईसी कोड का भी मैक्सिमम कैप है, वो है 50 लाख रुपए। यानी कि एक एक्सपोर्टर 50 लाख से ज्यादा कंपोनेंट 3 में जो नॉन पॉलिसी होल्डर के लिए एप्लीकेबल है, वो उससे ज्यादा कंपनसेशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये कंपोनेंट 2 में देयर इज नो कैप। 50 लाख हो या 5 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जो भी लॉसेज हैं उस लॉसेज का 80% या 85% या 90% बाय डिफॉल्ट ईसीजीसी की पॉलिसी में मिलता है। गवर्नमेंट यहाँ पे बस वो जो कवरेज का परसेंटेज है वो उसको हाई करके 95% पे लेके जा रही है। तो यहाँ द स्काई इज द लिमिट, बिकॉज देयर इज नो कैप एट ऑल कि हम आपके लॉसेज को ना मिनिमाइज कर रहे हैं कि भाई 50 लाख से ऊपर नहीं देंगे। तो द बेस्ट वे टू मिटिगेट द रिस्क करेंटली व्हाट एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग, कि आप पॉलिसी लीजिए, और जो भी कवरेज आपको पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट दी जा रही है उसके ऊपर एडिशनल अप टू 95% गवर्नमेंट एटलीस्ट दे रही है, क्या कहते हैं ये मेजर्स के थ्रू। और ईसीजीसी की जो पॉलिसीज हैं, जो होल्ड टर्नओवर पॉलिसी है, उसके अंदर हम आज की तारीख में ऐसे भी 90% कवर देते हैं, और विदाउट चैनल पार्टनर या विदाउट ब्रोकर के थ्रू अगर ये प्लेस की गई है ना, तो हम उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ना 95% कवर देते हैं। तो द एडवांटेज हियर इज कि दैट इफ एक्सपोर्टर्स आर ना टेकिंग पॉलिसी ईसीजीसी पॉलिसी, तो आज हो या आने वाला 2 महीने के बाद हो या 6 महीने के बाद हो, कभी भी कोई भी लॉसेज होगा, नॉट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस, क्योंकि ईसीजीसी पॉलिसी में ये कंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि आपका डेस्टिनेशन कंट्री ही केवल ये होना चाहिए या वो ट्रांजिट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ईसीजीसी पॉलिसी ले रहे हैं तो ईसीजीसी पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट जो पॉलिटिकल रिस्क हम जो कवर देते हैं, उसके अंदर वॉर के अंदर जो रिस्क है, जो फॉरेक्स करेंसी का जो डिप्लीशन है किसी कंट्री में, कि फॉरेक्स अवेलेबिलिटी नहीं है या कोई पॉलिटिकल कुछ चीजें हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारा का सारा कवर होता है। तो आज की तारीख में हमें ये रिस्क दिख रहा है बिकॉज ऑफ वॉर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे वेनेजुएला में हो रखा था, जैसे श्रीलंका में हो गया था, कि या इजिप्ट में हो, आई थिंक 1.5 साल पहले था,
जहां बायर पेमेंट तो कर रहा है लोकल करेंसी में, बट सरकार नहीं कर पा रही है बिकॉज वहां पर फॉरेक्स करेंसी ही नहीं है. तो माई रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू ऑल एक्सपोर्टर इज दैट दिस इज द हाई टाइम that we should think that there is that we should definitely go for ECGC cover, because that will provide you the complete mitigation of the risk. और आजकल जो जियोपॉलिटिकल चल रहा है और आगे भी जो भी चलेगा, क्योंकि ECGC की पॉलिसी में केवल ये डेस्टिनेशन कंट्री ही लिमिटेड नहीं है. हम वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है, कहीं भी आपका शिपमेंट जा रहा है और इस तरह की कोई भी चीजें होगी, दैट विल टेक केयर. तो दैट इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट 2 कि कंपोनेंट 2 के अंदर आपको ये कवर मिल रहा है. अप टू 95% सरकार दे रही है. अगर ECGC 90% दे रही है तो 5% एडिशनल सरकार की तरफ से. यस सर, नेक्स्ट स्लाइड. अब ये है सर कंपोनेंट 3, जहां कंपोनेंट 3 में आई थिंक ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है. ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जो ECGC के कस्टमर नहीं है और जो MSME एक्सपोर्टर्स हैं, यानी MSME का सर्टिफिकेट होना चाहिए. पहला ये. दूसरा ये रिस्ट्रिक्टेड शिपमेंट के लिए ही है. 14 फरवरी से 2026 से 15 मार्च 2026 इस पीरियड का अगर शिपमेंट है तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है. केवल सी शिपमेंट पे एप्लीकेबल है, एयर शिपमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है. तो ये चीजें बड़ी क्लियरली डिफाइंड है कि इसके अंदर आप जो क्लेम कर सकते हैं वो आपका BL डेट यानी शिप डाउन बोर्ड डेट जो है वो 14 फरवरी और 15 मार्च के बीच का होना चाहिए. एयर शिपमेंट नहीं होना चाहिए. और ये क्या कहते हैं, हम किस अकाउंट पे ये चीज को कंसीडर कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एडिशनल फ्रेट या इंश्योरेंस, ये दोनों या तो एक्सपोर्टर बियर कर रहा है या बायर बियर कर रहा है. और बायर सुटेबल पेपर आपसे शेयर कर रहा है, मतलब एक्सपोर्टर से शेयर कर रहा है, उतना पैसा डिडक्ट करके आपको पेमेंट कर रहा है. तो इन बोथ केसेस ये एप्लीकेबल होगा. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ये ऑलरेडी ECGC के वेबसाइट पे भी मेंशन है कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो कहीं कोई इसमें बहुत चैलेंज नहीं है. बेसिक डॉक्यूमेंट्स है व्हाट वी आर रिक्वायरिंग इट. इसके अंदर कैप जैसा मैंने बताया था कि जो टोटल लॉस होगा उसका 50% ही मिलेगा. और पर IC कोड वो 50 लाख रुपए का कंपोनेंट है. हाउ टू फाइल इट, द ECGC वेबसाइट, वंस यू गो द होम पेज इटसेल्फ गिव यू द इनफ इंडिकेशन कि आपको कंपोनेंट 3 के अंदर इफ यू वांट टू फाइल इट you can click it and you can go ahead with the and if at all you have any difficulties in processing and this online submission of the claim, then you can definitely connect with any ECGC person. I think ठीक है. बस जो कंपोनेंट 1 2 3 था, so this is the major information that we have parted. Any issues or any question on this particular 1 2 and 3? Anybody has any queries? Yeah, Acha, can you just give me, do you have any like a toll-free number, either any customer support number, where if exporter are facing any problem, that they can meet, yeah, they can basically connect to that person and basically resolve this issue? बिल्कुल सर. आप लोकेशन क्या है सर आपकी? भदोही. भदोही है ना. तो भदोही में सर वाराणसी ब्रांच है हमारा. ठीक है. हाँ. तो वाराणसी ब्रांच के जो BMs हैं उनका नंबर मैं पवन दीदी के साथ शेयर कर दूंगा. वो सबको शेयर कर देंगे, आई थिंक फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन. तो ब्रांच मैनेजर हैं और वहाँ दे विल कनेक्ट विथ यू, आइदर दे विल गाइड यू, और फिर वहाँ पे जो फील्ड अफसर हैं, बाकी जो ऑफिसर्स हैं, दे विल आल्सो कनेक्ट विथ यू, क्योंकि आई थिंक वो नियरेस्ट ब्रांच है एंड दे विल गाइड यू सर डेफिनेटली. तो ये एक PPT है. ये इस PPT का पर्पस क्या है कि अभी हमने रिलीफ मेजर्स की बात की. जब हम रिलीफ मेजर्स की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन एक सिचुएशन आ गई जिसमें everybody has to sell it. We have to find a solution for the same, because ये चीजें तो होती रहेंगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है. लेकिन एक चीज जो हम जितने फीडबैक्स मिले एक्सपोर्टर से, उनसे ये निकल के आया कि देयर आर एक्सपोर्टर्स
they don't have that much of information or idea कि ECGC पॉलिसी में पॉलिटिकल रिस्क भी कवर होता है और ये सारी चीजें कवर होती है. दे हैव दिस नोशन कि बस कमर्शियल रिस्क ही कवर होता है, यानी जो बायर डिफॉल्ट कर देता है या बायर पेमेंट नहीं करता है, वो चीज ECGC की पॉलिसी में कवर है. बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि जो इस तरह के वॉर के सिचुएशन में अगर आपका लाइनर शिपमेंट को डाइवर्ट कर दे रहा है अपनी मर्जी से, बिकॉज वो सी रूट वायबल नहीं है, जो भी एडिशनल वो फ्रेट चार्जेस कर दे रहा है, या फिर जैसे मैंने बताया कि कंट्री की फॉरेक्स का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे सारे केसेस जो होते हैं ये पॉलिटिकल रिस्क के अंदर आते हैं और ये बाय डिफॉल्ट ECGC की सारी पॉलिसी में कवर है. यानी कि अगर आप ECGC पॉलिसी ले रहे हैं तो जो आज की सिचुएशन है या इससे पहले ईरान और रसिया और यूक्रेन का सिचुएशन है, या फिर आप श्रीलंका का ले लें, वेनेजुएला का ले लें, ये सारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ECGC पॉलिसी में वेल कवर्ड है. ये एक जानने की जरूरत है, एज ए अवेयरनेस के रूप में मैं इसको बताना चाह रहा हूँ. क्योंकि अगर आप ECGC में केवल ये सोच रहे हैं कि नहीं ओनली बायर का ही डिफॉल्ट कवर है, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट यानी कि बायर के कंट्री के द्वारा भी कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आपका पेमेंट नहीं आ रहा है या एडिशनल कॉस्ट हो जा रहा है जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसका भी लॉस कंपनसेशन ECGC से ले सकते हैं. तो ECGC का एक जस्ट एक फेयर इंफॉर्मेशन है जो यहाँ मेंशन है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं और IRDAI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से गवर्न होती है. तो इसका मतलब ये है कि हम 100% ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, चाहे वो प्रीमियम रेट में हो, चाहे वो क्लेम की प्रोसेसिंग में हो. तो आप ECGC से इस चीज की 100% एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि व्हाट वी आर सीइंग यू, व्हाट वी आर टेलिंग यू, वी आर गोइंग एंड इन पैन इंडिया यू विल फाइंड द सेम थिंग. यू विल नॉट फाइंड दैट वाराणसी ब्रांच कुछ और कह रहा है, मुरादाबाद ब्रांच कुछ और कह रहा है, या दिल्ली ब्रांच कुछ और कह रहा है, बिकॉज वी गवर्न बाय द सेम प्रिंसिपल विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपोर्टर्स. सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. पवनदीप जी नेक्स्ट स्लाइड. और नेक्स्ट सर ये ब्रांचेज हैं, आई थिंक सबको पता है. कारपेट में भदोही के पास तो वाराणसी ब्रांच है जो नियरेस्ट है, बट इसके अलावा भी इनफ ब्रांचेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में. जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है आप उस ब्रांच से कनेक्ट हो सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू, दे कैन गाइड यू, they can come down to your office also, and you can also come down to the ECGC office for whatever queries you have. Next slide, sir. Next slide. तो इसको इस स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए. सर आई थिंक ये अभी बहुत प्राइम टाइम है सारे एक्सपोर्टर को ये समझने के लिए कि रिस्क जब हम बात करते हैं ना तो क्या होता है, और यही टर्म्स ऑफ पेमेंट है जहाँ पे मेजरली एक्सपोर्ट होता है. जो DA का टर्म्स ऑफ पेमेंट है, या जो ओपन डिलीवरी का टर्म्स ऑफ पेमेंट है, या DP है या LC है. तो जैसा आई थिंक जो एक्सपोर्टर है उनको ऑलरेडी पता है ये कि DA और OD के केस में व्हाट इज हैपनिंग, द गुड्स इज ऑलरेडी टेकन बाय द बायर एंड द बायर इज पेइंग यू आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर सर्टेन डेज और 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज. तो ये सबसे रिस्की ट्रांजैक्शन होता है जहां भी आप इस टर्म्स ऑफ पेमेंट पे काम करते हैं. तो ये यहाँ पे 100% लॉस होने का चांसेज है DP और DA और OD के केस में. DP के केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि DP के केस में आपका शिपमेंट बाय शिप जा रहा है, शिपमेंट हाई सी में है और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि मुझे सामान ही नहीं चाहिए, या सामान आपका शिप पे पहुंच गया है, सॉरी पोर्ट पे पहुंच गया है और बायर लेने से मना कर रहा है. तो वैसे केस में DP के केस में अगर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जा रहा है जब आपका गुड्स हाई सी में था, या फिर ये पोर्ट पे पहुंचने के बाद बायर लेने से मना कर रहा है, तो उस वक्त एक्सपोर्टर के लिए ये एक डिसीजन नेक्स्ट स्टेप है कि या तो उस गुड्स को रीसेल करे या री इम्पोर्ट करे. और इसमें से आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका री इम्पोर्ट करेंगे तो जो इन एंड आउट जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो, प्लस जो पोर्ट का जो डैमेज चार्जेज है, दैट विल बी द लॉस. और अगर रीसेल करते हैं तो अगेन पोर्ट का जो डैमेज चार्जेज है प्लस द डिस्काउंट टू द सेकंड बायर, ये आपका एक लॉस है
जो आप बियर करते हैं। और एलसी के केस में बैंक का डिफॉल्ट हो जाना, या एलसी के केस में भी अगर आपका लाइनर इस वॉर रिस्क की वजह से कुछ एडिशनल चार्ज कर रहा है, तो ये तमाम रिस्क हैं जो ईसीजीसी की पॉलिसी में वेल कवर्ड है। तो यू शुड नो कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ पेमेंट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग रिस्क डेफिनेटली। अगर ये हम परसेप्शन में नहीं रहे कि नहीं मेरा तो डीपी पे कंसाइनमेंट है तो मेरे पास तो रिस्क ही नहीं है, या एलसी में है तो मेरा रिस्क नहीं है, क्योंकि आज ऐसे केसेस हैं कि आप सोच लीजिए कि एलसी के 5 करोड़ के कंसाइनमेंट है, और जो कंसाइनमेंट शिप जो जा रहा था वो शिप लाइनर ने डाइवर्ट कर दिया, पर कंटेनर $2,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, और आपका 20 कंटेनर जा रहा है या 10 कंटेनर जा रहा है। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट है ये कोई बियर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसको ईसीजीसी के पॉलिसी के थ्रू कवर किया हुआ है, तो इन चारों ट्रांजैक्शन में, क्योंकि डी और ओडी के केस में कंप्लीट लॉस हो सकता है बायर की तरफ से, प्लस जो एडिशनल इस तरह की वॉर वाली सिचुएशन आती है वो भी, तो इन चारों में देयर इज अ रिस्क, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ रिस्क, exporter is facing it, and our request is that once you take ECGC policy, all risks are covered under that ECGC policy if you take that. So it is a high time that we should think कि we should not make any shipment even on a DP or LC terms without taking ECGC cover, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट के बाद एडिशनल कॉस्ट हो गई, या इंश्योरेंस कॉस्ट अचानक से बढ़ा दिया, या डिलीवरी के वक्त लाइनर ये कह रहा है कि $500 एक्स्ट्रा दोगे तभी मैं पोर्ट पे डिलीवरी करूंगा, ये जो चार्जेज है ये भी इसके अंदर कवर्ड है इन ईसीजीसी प्रोडक्ट में। तो ये सर एक स्नैपशॉट है सबके लिए कि कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, ये रिस्क का दो मेजर कंपोनेंट है जो ईसीजीसी की पॉलिसी में कवर होता है। कमर्शियल रिस्क के बारे में सबको पता है बाय एंड लार्ज, और उन्हें लगता है कि मेजरली ईसीजीसी की पॉलिसी में यही कवर होता है, बट कमर्शियल के साथ साथ पॉलिटिकल रिस्क भी कवर होता है, और इसके लिए कोई एडिशनल प्रीमियम चार्ज नहीं होता है, इसके लिए कोई एडिशनल एक्सपोर्टर से रिक्वेस्ट नहीं ली जाती है। तो अगर आपने ईसीजीसी की पॉलिसी ले रखी है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कमर्शियल रिस्क के साथ साथ ईसीजीसी पॉलिटिकल रिस्क भी प्रोवाइड कर रही है। इन अकाउंट पे अगर आपका कोई भी लॉस होगा तो ईसीजीसी वेल कंपनसेट करेगी और इंडेमनिफाई करेगी जो भी आपका लॉसेज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये सर पॉलिटिकल रिस्क को हम ज्यादा अभी स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि पॉलिटिकल रिस्क के अंदर क्या क्या लॉसेज होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन है, ट्रांसफर का डिले रिस्क है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, उस अकाउंट पे भी होता है कि शिपमेंट तो श्रीलंका चला गया या इजिप्ट चला गया, बायर ने लोकल करेंसी में भी दे दिया, बट बायर का बैंक नहीं दे पा रहा है आपको, और वो 6-6 महीने 8-8 महीने या साल भर का डिले है या नहीं भी पेमेंट आ रही है, ये भी हम बाय डिफॉल्ट ईसीजीसी पॉलिसी में कवर होता है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन या डाइवर्सन ऑफ वॉइस जो अभी हम बात कर रहे हैं ना रिलीफ मेजर्स के अंदर, ये डाइवर्सन ऑफ वॉइस के क्या है कि अगर लाइनर अपने रूट को चेंज करता है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और उसमें जो आपको एडिशनल इनकर होता है, ये लॉस आपको ईसीजीसी की पॉलिसी में दिया जाता है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन रिस्क भी हम इसके अंदर दे रहे हैं, यानी कि आपके शिपमेंट करने के बाद अगर किसी तरह का सरकार मतलब बायर की जो कंट्री है ना, वहां से किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि भाई ये गुड्स अब बैन हो गया, अब हम इसको अलाउ ही नहीं करेंगे, वैसे केस में भी जो भी लॉसेज होगा री इम्पोर्ट का या रीसेल का, वो सब ईसीजीसी में कवर है। तो ये पॉलिटिकल रिस्क जिसके लिए एटलीस्ट हमने जो वेबिनार किया है, आई थिंक सबको ये जानने की जरूरत है और एक दूसरे को भी बताने की जरूरत है कि once you take or once you have the ECGC policy, any losses which you incurred because of the political risk, that will be well indemnified under the ECGC policy। और ये सारे रिस्क जो मेजरली हेडेड है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। कमर्शियल रिस्क आई थिंक सबको पता ही है, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है कि हम इसके अंदर आपका प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट भी कवर करते हैं, इंसॉल्वेंसी भी कवर करते हैं, ठीक है। और रेपुटेशन मतलब
बायर लेने से मना कर रहा है गुड्स, तो इन सारे तमाम चीजों पे अगर आपका लॉस होता है वो लॉस को वेल कंपनसेट किया जाता है, और यहाँ पे आपने जितनी की पॉलिसी ले रखी है उतने अमाउंट तक का हम देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 5 लाख या 10 लाख या 5 करोड़। अगर बायर अच्छा है और आपने बायर पे शायद 20 करोड़ का भी हमसे कवर मांगा है, तो हम 20 करोड़ भी अंडरराइटिंग करने के बाद अगर हमें सुटेबल लग रहा है तो हम 20 करोड़ 30 करोड़ इवन 100 करोड़ तक का भी हम सिंगल बायर पे हमने कवर दिया हुआ है एक्सपोर्टर्स को। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस बायर के साथ आप काम कर रहे हैं, और कल को कि वो बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया या पूरी का पूरा शिपमेंट लेने के बाद वो दे नहीं रहा है, तो कोई भी इन सब चीजों की वजह से अगर आपका लॉस होता है दैट विल बी वेल कंपनसेटेड। सो अगेन इट इज ए रिफ्रेशमेंट एंड मे बी कि आपको ये जानना चाहिए कि ये सब सारे रिस्क जो होते हैं जिसकी वजह से लॉसेज होता है दैट इज कवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये एक जस्ट स्नैपशॉट है ये बताने के लिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। चीजें हो जाती है और होने के बाद फिर हम ये इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि शायद हमने ऐसा किया होता, शायद हमने वैसा किया होता। तो समझना बस ये है कि ये एक एग्जांपल है जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पे चीजें होती है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्टर एज वेल एज द इंपोर्टर, एंड यू इवेंचुअली फेसेस लॉस। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जोन पे डिफरेंट जगह पे हुआ है, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं एक्सपोर्टर को काफी लॉसेज उठाना पड़ा है। तो इन सारे जो रीजन्स हैं जो ग्लोबली इंटरनेशनली हो रहा है, इफ यू आर एंजॉयिंग ECGC पॉलिसी एंड if you will face any losses on account of this, definitely the losses will be indemnified as per the policy। तो हमें ये थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है कि हम ये एजम्पशन नहीं लें कि नहीं हमारा बायर अच्छा है और बहुत पुराना बायर है और हमें कुछ नहीं होगा। तो nobody can predict that। So these are the examples that you have to know। अब हमें आगे के लिए सोचना है कि आगे कम से कम कोई लॉस हो उसके लिए हम वेल कंपनसेट किया जाए ताकि हमारा बिजनेस हैम्पर नहीं हो, आपकी वर्किंग साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। I think ठीक है, it's nothing to discuss here in this meeting because see the purpose of this slide is just to give you a snapshot that ECGC products is well providing you the cover under the commercial risk as well as the political risk which we are talking right now, ठीक है। जो हॉट डिस्कशन आज की तारीख में हो रहा है ना कि भाई हमारे लॉसेज हो रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ECGC की पॉलिसी लेते हैं तो निश्चित तौर पे यू कैन दैट मच ऑफ पीस कि एनीथिंग हैपन इवन इन द फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ एनीथिंग other than this quality dispute on your product, it is well compensated, well indemnified for the losses which you will incur. So with this, I think I will close this our presentation. So if anything, anyone they have to ask, you are most welcome, sir. So I would request our Vice Chairman, Sri Aslam Mahbub, for the vote of thanks. मैं मीटिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। और अगर कोई जो भी इसी पवनदीप जिसको भी कोई इशू हो जस्ट मेक अ नोट एंड शेयर विद अस, ठीक है। Noted. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much to everyone for this nice webinar. Thank you. Thank you, sir.